Hello students, so today topic is the surface integral. Last time we have done line integral and then Green's theorem. So Green's theorem was basically the transformation between line integral and double integral. So now we'll do the surface integral. That means we will integrate a vector function f over the surface S, right? We have given a surface S and we will integrate the function f over the surface S, right? So by means of a surface integral we mean double integration f vector dot n unit vector dA. Now I will tell you what are these n unit vector and dA, right? तो सबसे पहले आपको एक f वेक्टर फंक्शन गिवन होगा, उसका आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना है, जिसके ओवर निकालना है वो हमें सरफेस गिवन होगा, दैट इज s, ठीक है। तो आपको अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स वर्किंग रूल, आपको प्रोसीजर बताऊंगी हाउ टू सॉल्व सरफेस इंटीग्रल, राइट। सो तो आपको f पता होगा, f गिवन होगा आपको, ठीक है। अब आपको एक ओवर द सरफेस s सरफेस इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये n यूनिट वेक्टर निकालना है। हाउ टू फाइंड दिस n यूनिट वेक्टर? दिस n unit vector is unit normal vector. This is unit normal vector to the surface S, to the surface S. This is the unit normal vector which was to the surface S, ठीक है। सपोज वी हैव अ सरफेस, अब 3 डायमेंशन की बात हो रही है। सपोज वी हैव अ सरफेस लाइक दिस and this is the tangent plane over there, ठीक है। So what is unit normal vector? The vector which is perpendicular or normal to this plane. Say it is x axis and this is y axis, right? So this unit vector, n unit vector, is the unit normal vector which is normal to the surface S. Say it is surface S, then the unit vector which is normal to the surface S, this is called n unit vector. ये n unit vector होगा। अब आपको unit vector which is normal to the surface S कैसे find out करना है? That means how to find n unit vector, and that is del phi या grad S by magnitude of grad S, right? ग्रेड एस, ग्रेड आपको पता ही है, ठीक है। ग्रेड एस बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड एस, दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड आउट यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस एस, ठीक है। तो एस पे जो यूनिट वेक्टर नॉर्मल होगा वो हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ व्हाट इज डी ए? अब ये सरफेस की जो प्रोजेक्शन है जिस प्लेन पर होगी, दैट मीन्स इफ इट इज इन द एक्स वाई प्लेन, if it is in the xy plane, then dA will be considered as dx dy by n unit vector जो भी हमने find out किया dot k, ठीक है। if it is in yz plane, if the projection is in the yz plane, then dA will be considered as dy dz by n unit vector dot I, right? And if it is zx plane, then dA is dx dz by n unit vector dot j, right? So इस तरह से dA फाइंड आउट किया जाएगा, right? तो फाइनली अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। surface integral of a vector function f can be find out with the formula double integration f dot n dA. Now what is n? N is the unit vector which is normal to the surface S, and dA will be considered as dx dy by n dot
k if the projection of s is in the xy plane. If the projection of s is in the yz plane, then dA will be considered as dy dz by n dot by magnitude n dot I, and if it is in the zx plane, then dA will be considered as dx dz by n dot j. तो ये सारी वैल्यूज हैं. उसके बाद हमें x, अगर एक्स वाई प्लेन है तो x और y की लिमिट फाइंड आउट करनी होगी, yz प्लेन है तो y और z की लिमिट फाइंड आउट करनी होगी, zx प्लेन है तो z और x की लिमिट फाइंड आउट करके हमें इस इंटीग्रेशन में पुट करना है. f आपको पता होगा, n आपको निकालना है, dA आपको पता चल गया कैसे निकाला जाएगा, तो इस फॉर्मूले में पुट करना है एंड यू विल गेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फंक्शन f ओवर द सरफेस s. राइट, तो इस तरीके से आपको सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. राइट, तो लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट with a question. Question is evaluate double integration f vector dot n unit vector ds, that is you have to find out the surface integral where f is given by f is x plus y square I minus 2xj plus 2yzk, right, and s is the surface of the plane. Surface of the plane s is लिख देती हूँ मैं, s is the surface of the plane and the value of the plane is 2x plus y plus 2z is equals to 6. ठीक है, और उसके बाद हमें ये दे रखा है इन द फर्स्ट ऑक्टेंट. राइट, इन द फर्स्ट ऑक्टेंट यानी कि सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेंट में. राइट, फर्स्ट ऑक्टेंट. तो अब हमें सबसे पहले एफ डॉट एन डी एस या डी ए भी लिखा जा सकता था. ठीक है, डी ए भी लिख सकते हो आप. सो डी एस इज द सेम एज ऑफ द लाइक डी ए. जैसे हम डी ए को फाइंड आउट करते हैं इसी तरीके से डी एस फाइंड आउट करेंगे. राइट, तो अब हम चलते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है. एफ हमें गिवन है, अब हमें निकालना है एन यूनिट वेक्टर विच कैन बी फाइंड आउट with the help of s. That means we have to find out first grad s. राइट, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फंक्शन का निकलता है एंड एज वी कैन सी s इज अ स्केलर फंक्शन. ठीक है, तो ग्रेड s दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग नाउ डेल s. ठीक है, दैट इज i कर्ल बाय कर्ल x प्लस j कर्ल बाय कर्ल s by कर्ल x कर्ल s by कर्ल y plus k कर्ल s by कर्ल z. So this is grad s. So what is we have s is 2x plus y plus 2z minus 6 and curl s by curl x is 2, curl s by curl y is 1, curl s by curl z is 2. So what is grad s now? So grad s is 2i plus j plus 2k, right? So this is grad s. Now what is magnitude of grad s? So this is within root 2 square, that is 4, plus 1 square, that is 1, plus 2 square, that is 4, and this is 9 under root 9, and this is 3, right? So now continue to find n unit vector, that is del s by magnitude of del s, that means 2i plus j plus 2k by 3. So n unit vector आपका फाइंड आउट हो चुका है. सो नेक्स्ट विल फाइंड आउट f डॉट n. f ये हमें गिवन है, n निकल चुका है. सो f डॉट n इज, f में एक बार और लिख रही हूँ. सो f इज x plus y square I minus 2x j plus 2y z k, ये f है. सो व्हाट इज f डॉट n वेक्टर?
एफ डॉट एन वेक्टर इज x plus y square into 2/3. So 2/3 x plus y square minus 2x/3 plus this is 4yz/3. So this is f dot n. अब क्या रह गया है, लिमिट्स फाइंड आउट करनी है और ds फाइंड आउट करना है. तो हमें फर्स्ट ऑक्टेंट दे रखा है, राइट. फर्स्ट ऑक्टेंट दैट मीन्स हमें x और y की प्रोजेक्शन मिलेगी. दैट मीन्स वी आर टेकिंग इन xy प्लेन एंड इन xy प्लेन z एक्सिस इज 0. ठीक है, तो z 0 है. दैट मीन्स ये जो सरफेस जो ये सरफेस है इसमें z हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑक्टेंट दे रखा है. दैट मीन्स z इज 0. सो वी हैव द प्लेन एज 2x प्लस दिस इज 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 6. z 0 हो गया. सो 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 6. फर्स्ट ऑक्टेंट है, दैट मीन्स पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लेके चलना है. दैट मीन्स नेगेटिव नहीं चलेगा, वैसे भी इसमें नेगेटिव नहीं आना था. तो अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे लिमिट्स. ठीक है, तो लिमिट्स फाइंड आउट करने का मैं आपको एक बहुत इजी सा वे में बताती हूँ कि कैसे निकालते हैं लिमिट्स. आगे जब हम ट्रिपल इंटीग्रल भी करेंगे उसमें भी इसी तरीके से आपको लिमिट्स फाइंड आउट करनी है. बहुत इजीली आपको फाइंड आउट करनी है. जैसे इफ यू हैव गिवन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट देन 0 से स्टार्ट होता है. बट अगर फर्स्ट ऑक्टेंट मेंशन नहीं है तो आप -2 इफ इट इज कमिंग आउट लाइक प्लस माइनस देन -2 प्लस चलते हैं. बट इफ फर्स्ट ऑक्टेंट या कोई ऑक्टेंट हमें पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है तो 0 से स्टार्ट होगा. जैसे फर्स्ट ऑक्टेंट है तो 0 से स्टार्ट होगा. जैसे हम थर्ड अगर ट्रिपल इंटीग्रल भी कर रहे हैं और x y z तीनों का फंक्शन है और उस फंक्शन से हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है. दैट इज जैसे हमें s ये गिवन है तो s से हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है बिकॉज ओवर s हमने सरफेस इंटीग्रल निकालना है. तो आपको क्या करना है, z की लिमिट हमेशा आएगी x इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई. y की लिमिट निकालोगे आप इन द फॉर्म ऑफ x एंड x की लिमिट जो होगी दैट विल बी कांस्टेंट, राइट. ये मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से निकालना है. z की लिमिट x इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, y की लिमिट इन द फॉर्म ऑफ x एंड x शुड बी कांस्टेंट. तो सेम लाइक दिस. तो ये x की लिमिट कांस्टेंट कैसे आएगी या y की लिमिट x की फॉर्म में कैसे आएगी. यहाँ पर आप y को 0 रख दोगे, यहाँ पर आप y को 0 यहाँ पर रख दोगे, y को 0 एंड ठीक है z को 0. तो आपके पास x की लिमिट आ जाएगी, राइट. तो जैसे कि अब हमारे पास ये फंक्शन है, इसमें हमने कौन सा लिया है, एक्स वाई प्लेन लिया है. तो x और y की लिमिट फाइंड आउट करनी है. सो वी हैव y की लिमिट आ जाएगी 6 माइनस 2x और फर्स्ट ऑक्टेंट है तो 0 to 6 - 2x. और x की लिमिट कैसे आ जाएगी, y को 0 रखकर, तो 2x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू 3. तो 0 to 3 लिमिट आ जाएगी x की एंड 0 to 6 - 2x लिमिट आ जाएगी y की, राइट. तो अब हमारे पास लिमिट्स आ चुकी हैं. x की लिमिट है 0 to 3 एंड y की लिमिट है 0 to 6 - 2x, राइट. तो ये दोनों लिमिट आ चुकी हैं x और y की. अब ds क्या कंसीडर होगा, एज वी आर टेकिंग एक्स वाई प्लेन, तो ये आ जाएगा dx dy बाय n यूनिट वेक्टर डॉट जो रह गया दैट इज k. ठीक है, सो ये आ जाएगा ds. अब हमें dx dy और xy की लिमिट भी आ गया. अब बच गया है सिर्फ n डॉट k निकालना. सो n डॉट k भी फाइंड आउट कर देते हैं. n डॉट k हमारा बनेगा, n वॉज n डॉट k आ जाएगा, आई थिंक इट इज इन द मैग्नीट्यूड. आप फाइंड आउट कर लेना, 2/3 आ जाएगा, राइट. जैसे ये रहा n, ठीक है, ये n है तो n डॉट k मतलब k के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2/3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n डॉट k is 2/3, right. So we have n dot k as 2/3. अब हमारे पास सारी की सारी जो हमें वैल्यूज चाहिए थी वो सब वैल्यूज हमें मिल गई हैं. अब उन सारी में वैल्यूज को हमें फॉर्मूले में
पुट करना है। दैट मीन्स जो हमारा फॉर्मूला था एफ डॉट एन डी एस, ये क्या बन चुका है, इंटीग्रेशन। यहाँ पर बाहर रखेंगे हम कांस्टेंट लिमिट, ठीक है, ताकि आंसर हमारा कांस्टेंट में आए, और यहाँ रखेंगे हम y की लिमिट 6 माइनस 2x। एफ डॉट एन आया था, एफ डॉट एन वॉज इट वॉज सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके 4/3 y इंटू 3 माइनस एक्स, राइट। ये एफ डॉट एन हो गया। उसके बाद डी एस की वैल्यू है डी एक्स डी वाई बाई एन डॉट के, राइट, ये इसकी वैल्यू थी। तो ये आ जाएगी लिमिट 0 to 3 लिमिट 0 to 6 माइनस 2x 4/3 y इंटू 3 माइनस एक्स dx dy and n dot k was 2/3, तो ये उल्टा होकर आ जाएगा 3/2, सो ये कैंसिल हो गया 2, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सो 0 to 3, ये जो 2 कांस्टेंट है ये हम बाहर रख रहे हैं, एंड 0 to 6 माइनस 2x y इंटू 3 माइनस एक्स डी वाई डी एक्स भी आप लिख सकते हो, एज वी हैव फर्स्ट लिमिट ऑफ y एंड देन वी हैव सेकेंड लिमिट ऑफ x। तो पहले आप डी वाई रखोगे एंड देन डी एक्स रखोगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू y। इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, आपको सिर्फ ये बॉक्स वाले को इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 to 3, इसका इंटीग्रेशन सिर्फ y का होगा, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2, तो 3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 एंड डी वाई डी एक्स, एंड लिमिट यहाँ आप रख दोगे 0 to 6 माइनस 2x, राइट। तो 6 माइनस 2x आपने यहाँ पर लिमिट रख दी। अब इस लिमिट को पुट कर दो, 2 0 to 3 माइनस एक्स एज इट इज, जहां पर y दिख रहा है वहां पर हमने 6 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 पुट कर दिया। ये 2 से ये वाला 2 बाहर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 हट जाएगा, एंड वी हैव डी एक्स ओनली, राइट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको ओपन करोगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड वी गेट 0 to 3 माइनस 4x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर माइनस 108x प्लस 108। जब आप इसको स्क्वायर को ओपन करोगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब पूरा फंक्शन x की फॉर्म में आ चुका है। अब पूरे फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करना है, एंड वी हैव माइनस 4x 4/4 प्लस 36x क्यूब बाई 3 माइनस 108x स्क्वायर बाई 2 प्लस 108x, एंड लिमिट 0 to 3 आपको पुट करनी है। तो 3 जहां जहां पर x है वहां पर 3 पुट कर दोगे। बाय सिंप्लीफाइंग इट वी गेट आंसर 81। सो द सरफेस इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ओवर s इज 81, राइट। सो दिस इज इट। तो इस तरह से आप सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो मैं एक और क्वेश्चन लिख रही हूं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो एक और क्वेश्चन मैं लिख रही हूं, वो आप करना सॉल्व, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन y z i प्लस 2xj प्लस xyk, evaluate this, right? So evaluate this dot n ds, and what is s here? S is the surface of the sphere, surface of the sphere x square plus y square plus z square is equals to a square in the first octant। देखो जैसे अब हमें फिर से दे रखा है in the first octant, जैसे अब हमें फिर से फर्स्ट ऑक्टेंट दे रखा है, दैट मीन्स अब आप जब लिमिट फाइंड आउट करोगे, से इट इज हम एक्स वाई प्लेन, अगेन हम एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं, तो बाकी सब आप निकाल लोगे, डेल एस निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एस निकाल लोगे, दैट वुड बी एन
एफ आपको गिवन है, ds हम dx dy बाय n डॉट k कर देंगे। उसके बाद अब मेन है जो कि लिमिट निकालनी है, राइट। तो लिमिट कैसे फाइंड आउट करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दे रखा है, एक्स वाई प्लेन लिया है तो पहले ही जेड जीरो हो चुका है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि z की लिमिट एक्स वाई की फॉर्म में आएगी, y की लिमिट x की फॉर्म में, एंड x की लिमिट आएगी कांस्टेंट। तो y की लिमिट क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट आनी थी वैसे तो, बट दो इट इज इन दी फर्स्ट ऑक्टेंट, दैट इज वाई विल टेक y इज इक्वल्स टू 0 टू अंडर रूट a square minus x square as it is in the first octant. That is why we are taking from 0 to a square minus x square, and x की लिमिट क्या आ जाएगी, वैसे तो आनी थी प्लस माइनस a, बट माइनस हम क्यों नहीं लेंगे, तो बिकॉज फर्स्ट ऑक्टेंट में है, तो x की लिमिट क्या आ जाएगी, x की लिमिट आ जाएगी 0 टू a, ये लिमिट आ जाएगी y की और ये लिमिट आ जाएगी x की। उसके बाद आपको निकालना है एनी यूनिट वेक्टर, दैट कैन बी डन बाय डेल s बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल s। ds आपको पता चल गया है, दैट इज dx dy बाय मैग्नीट्यूड n डॉट k, ठीक है, सारी वैल्यूज आपको मिल गई। उसके बाद सीधा आपको फॉर्मूला में पुट करना है। दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड आउट अ सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ओवर द सरफेस s, right? So next moving on to the Stokes theorem, and this is the last topic of your syllabus। तो Stokes theorem में एक बेसिकली है क्या, जैसे कि ग्रीन्स थ्योरम था, ग्रीन्स थ्योरम वाज द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द लाइन इंटीग्रल एंड डबल इंटीग्रल, एंड स्टोक्स थ्योरम इज द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन, so next Stokes theorem, which is a transformation between line integral and surface integral, right? Line integral and surface integral. That means when we say that line integral is equals to surface integral, so the statement of this Stokes theorem is surface integral line integral के इक्वल कब होगा, जब हम, वैसे तो surface integral क्या होता है f डॉट n, बट line integral के इक्वल f डॉट n करके नहीं, कर्ल f डॉट n ds करके आएगा इक्वल लाइन इंटीग्रल के, एंड लाइन इंटीग्रल क्या होता है f डॉट डी आर, ठीक है, लाइन इंटीग्रल होता है f डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, ये वही सेम है। तो इस तरीके से हम स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को इक्वल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, f डॉट डी आर, दैट मीन्स लाइन इंटीग्रल कैन बी इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल व्हेन वी कब कर सकते हैं, जब f डॉट एन ना करके कर्ल f डॉट एन, कर्ल f आपको पता ही होगा डेल क्रॉस f, ठीक है। तो इस तरीके से हम सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल को इक्वल कर सकते हैं। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसमें हम स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। दैट मीन्स स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स लाइन इंटीग्रल शुड बी इक्वल टू दिस सरफेस इंटीग्रल। तो ये हम वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो द क्वेश्चन इज वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम for f vector, and f vector is given by y minus z plus 2i plus yz plus 4j minus xzk, राइट। तो ये सरफेस इंटीग्रल हमें इसमें हमें स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, एंड व्हाट इज दैट मीन्स हमें सरफेस इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा, एंड फॉर द सरफेस इंटीग्रल वी नीड अ सरफेस, ठीक है। सो व्हाट इज s इज द ओपन सरफेस ऑफ द क्यूब
x is equals to 0, y is equals to 0, z is equals to 0, x is equals to 2, y is equals to 2 and z is equals to 2 above the xy plane, above the xy plane. So this is the statement. इस पहले स्टेटमेंट को ही बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि क्या है। तो पहले तो हमें ये दे रखा है कि एक क्यूब बनाया, तो सबसे पहले हम इस क्यूब की फिगर बना लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इट इज़ मेंशन्ड दैट दिस क्यूब इज़ ऑन XY प्लेन, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि XY प्लेन पे इस क्यूब को ड्रॉ कर देंगे। दिस क्यूब इज़ लाइक दिस, सो ये क्यूब है। से इट इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, राइट। एज दिस क्यूब इज ऑन XY प्लेन, तो दिस इज XY प्लेन, ठीक है। XY प्लेन पर ये क्यूब दे रखा है हमें। तो अब हमें ये दे कितना रखा है गैप, दिस इज x एक्सिस, so this is 2 0 0 and this is 0 2 0 and this is 0 0 2, right। this is origin, so this is 0 0 0। ये जो vertex है ये this is between x and y, so this would be 2 2 and 0। this is in between y and z, so this would be 0 2 2 and this is between x and z, so this would be 2 0 2 and this vertex is in between three of them, so this vertex would be 2 2 and 2। let us take their name, so this A B C, A B O A B and C and then E F G H, so this is the cube। ये क्यूब दे रखा है। इस क्यूब के का ओपन सरफेस, ठीक है, यानी कि जो अबव ऊपर वाला, यानी कि बेस नहीं लेना है, ऊपर वाला जो है दैट इज द सरफेस। क्योंकि हमें स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो स्टोक्स थ्योरम में हमें सरफेस इंटीग्रल भी निकालना है और लाइन इंटीग्रल भी निकालना है। तो सरफेस इंटीग्रल के लिए हमें एक सरफेस चाहिए होता है और वो हमें सरफेस क्या दे रखा है, ये ऊपर वाला सिर्फ हिस्सा, ठीक है। सरफेस हमें ये दे रखा है, ये बेस नहीं लेना है, ओपन सरफेस ऑफ द क्यूब, राइट। तो आपको क्या कंसीडर करना है, ये 5 फेसेस कंसीडर करने हैं। फ्रंट फेस, इसके सामने वाला, साइड वाला, इसके सामने वाला एंड ऊपर वाला। बेस जो है वो नहीं आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो आपको अब स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करनी है और स्टोक्स थ्योरम में हमें सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल के लिए हम XY प्लेन कंसीडर करते हैं हमेशा, तो XY प्लेन के अंदर हमें ये स्क्वायर बन जाएगा, राइट, सिर्फ ये। तो लाइन इंटीग्रल के लिए हम क्या लेके चलेंगे, AOBC, AOBC, ठीक है, या AOCB, वट एवर। सो पहले हम निकालते हैं F डॉट DR। सो F डॉट DR के लिए हम क्या करेंगे, AOCB, दैट मीन्स पहले हम करेंगे अलोंग AO प्लस अलोंग OC प्लस अलोंग CB प्लस अलोंग BA। तो ये तो हो जाएगा लाइन इंटीग्रल। और जब हम सरफेस इंटीग्रल की बात करेंगे, डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस F डॉट N DS, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अलोंग सबसे पहले एक फेस, पहला फेस कौन सा ले लिया, फ्रंट वाला फेस हो गया ABEH, राइट। तो फ्रंट वाला फेस ले लिया ABEH। उसके बाद इसके सामने वाला, इस फ्रंट के सामने वाला, दैट मीन्स प्लस, अब हम लेंगे OCFG प्लस, उसके बाद अब ये साइड वाला, तो इसमें ले लिया B डबल इंटीग्रेशन, तो ये ले लिया BCEF प्लस डबल इंटीग्रेशन। अब इसके सामने वाला,
इस फेस के सामने वाला, दैट मीन्स AOGH। तो अब हम लेंगे AOGH प्लस, और अब लेंगे हम ऊपर वाला फेस, ठीक है, तो दैट इज HEFG। ओके, सो नेक्स्ट आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन HEFG, और हम बेस नहीं लेंगे बिकॉज हमें ओपन सरफेस ऑफ XY प्लेन दे रखा है, XY प्लेन वाला नहीं लेना है। और लाइन इंटीग्रल के लिए वी कंसीडर XY प्लेन, ऑलवेज कंसीडर XY प्लेन। सो ये सारा जो है ये एल्गोरिथम बन गया एक टाइप से कि हमें ये करना है। तो सबसे पहले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। F.dr, एज यू ऑल नो XY प्लेन है, तो dr, तो dr क्या बन जाएगा, dr इज dxi प्लस dyj, ठीक है, क्योंकि XY प्लेन है तो Z0 दैट मीन्स dz0। अब हमें वन बाय वन सबके अलोंग करना है, तो सबसे पहले अलोंग चलते हैं हम AO के। सो लेट अस टेक अलोंग AO, ठीक है। अलोंग AO में चेक करना है कि कौन फिक्स है और कौन वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अलोंग AO वैसे तो ये इस तरीके से चलता है क्लॉकवाइज, वी आर मूविंग थ्रू एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस वुड बी OA, ठीक है। सो OA, अलोंग OA, सो अलोंग OA में आ जाएगा एंड दिस वुड बी CO OA AB, हम एंटी क्लॉकवाइज चल पड़े, एंड BC, ओके। तो अलोंग OA में चेक करते हैं। अलोंग OA में Z तो 0 ही रहेगा, ठीक है, और Y भी 0 है एंड X वेरीज फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। तो अलोंग OA में Y इज 0 एंड X वेरी कर रहा है, एंड X वेरीज फ्रॉम 0 to 2 एंड X वेरी कर रहा है 0 to 2। इफ Y 0 देन dy 0, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं F.dr निकालना। F.dr, तो F.dr, F हमारा था y माइनस z प्लस 2i प्लस y z प्लस 4j माइनस x z k, ये था F.dr मतलब dxi प्लस dyj, ये था, ठीक है। तो अब इनकी प्रोडक्ट होगी एज dy 0 हो चुका है, z 0 है, y 0 है, y 0 है, z 0 है, z 0 है, तो ये सारे 0 हो जाएंगे। क्या बच गया हमारे पास, तो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट आ गई 0 to 2x की, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बचा 2i, ओके, यहाँ से बचा 4j प्लस 4j, राइट, और यहाँ से ये 0 हो चुका है, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है dxi के साथ, और i की i के साथ ही होगी डॉट प्रोडक्ट, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, एंड वी हैव 0 to 2dx, राइट। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, सो दिस इज 2x, लिमिट 0 to 2 पुट कर दिया, एंड वी हैव 4। तो अलोंग OA वी हैव 4, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट अलोंग AB, ठीक है। अलोंग AB में चेक कर लो कौन कांस्टेंट है, x वेरीज नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट है, y वेरी कर रहा है 0 to 2 एंड z इज कांस्टेंट 0, ठीक है। तो अलोंग OA में चलेंगे अब। So along OA में as we can see along AB इसमें x is constant and y वेरी कर रहा है, y varies from
from 0 to 2 and y varies from 0 to 2. If x is constant then its derivative is constant, right? तो z तो 0 है ही, तो f डॉट डी आर जैसे हमने पहले किया था, तो f डॉट डी आर इस केस में क्या बन जाएगा, ओनली 4dy ये बन जाएगा। अब करके देखना, x की वैल्यू 2 पुट कर देना, z की वैल्यू 0 पुट कर देना, dx 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। 0 to 2 लिमिट y की दे रखी है 4dy, सो दिस इज 4y एंड लिमिट पुट की तो दिस इज 8, राइट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट अलोंग BC। ठीक है, अलोंग BC में कौन वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 2 to 0, y इज कांस्टेंट एंड z इज कांस्टेंट। ठीक है, तो x वेरी कर रहा है, y 2 है एंड z तो 0 है ही, तो अलोंग हम चलेंगे BC पे, अलोंग BC। ठीक है, तो अलोंग BC में x वेरी कर रहा है, x वेरीज from 2 to 0, y is constant, y is 2 here and y is 2 here, so dy is 0। ठीक है, तो इस केस में जैसे हमने पहले किया था, तो इस केस में क्या बन जाएगा, f डॉट डी आर यानी कि आपको y की वैल्यू पुट करनी है, dy की वैल्यू पुट करनी है, dz और z की वैल्यू पुट करनी है, तो दिस बिकम्स f डॉट डी आर 4dx बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट 2 to 0 एंड वी हैव 4x एंड लिमिट 2 to 0 पुट करनी है, इस बार -8 आ जाएगा। ठीक है, एंड अब चलेंगे अलोंग CA में, अलोंग CO, राइट। सो अलोंग CO, ये रहा अलोंग CO, x कांस्टेंट है 0, y 2 to 0 एंड अलोंग CO में x कांस्टेंट है 0, y 2 to 0 एंड z 0। ठीक है, तो y वेरी कर रहा है, x कांस्टेंट है, तो अलोंग CO में हमने लिया x इज कांस्टेंट, सो dx इज 0 एंड y वेरी कर रहा है, y वेरीज फ्रॉम 2 to 0। ठीक है, तो f डॉट डी आर क्या बन जाएगा, f डॉट डी आर इज 4dy, चेक कर लेना, इंटीग्रेट करना है, लिमिट 2 to 0 है, इंटीग्रेट लिमिट 2 to 0 एंड वी हैव -8 अगेन। अब चारों को ऐड करना है एंड बाय एडिंग 4 ऑफ देम वी हैव विद रिस्पेक्ट टू O A B C, है ना। तो चारों को ऐड किया है, f डॉट डी आर यानी ये लाइन इंटीग्रल क्या मिल गया, इज इक्वल्स टू -4। इन चारों को ऐड करने पर वी हैव -4, तो हमारे पास लाइन इंटीग्रल की वैल्यू -4 आ गई है। अब हमें चेक करना है क्या सरफेस इंटीग्रल भी -4 आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए सरफेस इंटीग्रल हमें निकालना कैसे है, स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग डबल इंटीग्रेशन कर्ल एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर ds। ठीक है, ये लेना है हमें, कर्ल एफ लेना है। तो सबसे पहले हम कर्ल एफ ही ले लेते हैं क्योंकि कर्ल एफ सब में चलेगा। तो सबसे पहले हम कर्ल एफ निकाल देते हैं। कर्ल एफ कैसे निकलता है, बाय डिटर्मिनेंट, ऊपर लिखेंगे हम आई जे के, देन ये कर्ल एफ होता क्या है, डेल क्रॉस एफ होता है। डेल ऊपर लिखेंगे हम जो पहले लिखा हुआ है, दैट मीन्स डेल के कंपोनेंट कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई एंड कर्ल बाय कर्ल जेड, और फिर f के कंपोनेंट्स, f का i वाला कंपोनेंट है y माइनस जेड प्लस 2, j वाला कंपोनेंट है y z प्लस 4 एंड k वाला कंपोनेंट है माइनस एक्स जेड, राइट। तो अब आप क्या करो, इसका एक्सपेंड कर दो, i इंटू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 0, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इज y, ठीक है। देन माइनस j इंटू
derivative with respect to x is minus z, derivative with respect to z is minus 1, and then k into derivative with respect to x is 0, derivative with respect to y is 1. ठीक है, by solving this determinant we get curl f as minus yi plus zj minus k. इस तरीके से आपका कर्ल f आ जाएगा. ठीक है, कर्ल f आ गया. अब n यूनिट वेक्टर दैट इज नॉर्मल टू दी यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू दी सरफेस, ये हमें निकालना है. और ds लेना है. ds कैसे लेंगे, xy प्लेन लेना है या yz प्लेन लेना है, ये सब चेक करना है. राइट, तो ये सब हमें 1 बाय 1 फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, मैंने आपको फेसेस बता ही दिए थे कि कौन कौन से लेने हैं. फेसेस ये सारे लेने हैं, ABEH OCFG, ये 5 फेसेस के अलोंग करके उसके बाद इन 5 को हमें ऐड करना है. ठीक है, तो अब ये काम रह गया है n यूनिट वेक्टर निकालना और ds लेना और उसके बाद हमें इसमें पुट करते जाना है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट with the first phase, and the first phase is ABEH. What is ABEH? ABEH, ये वाला फेज हमने लिया ABEH, right? तो first phase is ABEH. ABEH. Okay, so ABEH. ठीक है, कर्ल एफ हमारा आ गया था. कर्ल एफ आया था माइनस YI प्लस ZJ माइनस K. ठीक है, इनटू n यूनिट वेक्टर जो कि एक नॉर्मल है टू दी सरफेस और ds हमें फाइंड आउट करना है. एज यू कैन सी ABEH, राइट, ABEH कौन से प्लेन में आ रहा है, ABEH. इसमें ध्यान से देखिए कि कौन कांस्टेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले देखो x 2 2 2 एंड 2. x इज कांस्टेंट, y वेरी कर रहा है, एक बार 0, एक बार 2, एक बार 2, एक बार 0. ठीक है, उसके बाद z 2 2 0 0, यानी z भी कांस्टेंट नहीं है और y भी कांस्टेंट नहीं है. कौन कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है. x चारों बारी में 2 2 2 एंड 2, तो x कांस्टेंट है. तो ये कौन सा प्लेन कंसीडर होगा, yz, जो वेरी कर रहे हैं. तो ABEH में क्या आ जाएगा, ABEH में ds हम क्या ले लेंगे, कौन सा प्लेन ले लेंगे, ds इज yz प्लेन, यानी कि dy dz बाय n यूनिट वेक्टर डॉट जो रह जाता है दैट मीन्स i. ठीक है, तो ये आ जाएगा ds. आई थिंक आपको ds समझ आ गया होगा कि इसमें ds कैसे लेना है. जो कांस्टेंट होगा, ठीक है, उसको छोड़ के जो प्लेन बन रहा है, जो वेरी कर रहे हैं वही प्लेन. जैसे हमारे पास कौन वेरी कर रहा था, yz वेरी कर रहे थे, तो दिस विल yz प्लेन. ठीक है, तो ds इस केस में क्या होगा, dy dz बाय n डॉट i. तो ds मिल गया. अब रह गया n यूनिट वेक्टर. तो n यूनिट वेक्टर इस केस में कैसे लेंगे हम, नॉर्मल टू दी सरफेस ना. तो n यूनिट वेक्टर इसमें हम i लेंगे विच इज ऑब्वियसली यहां से हम क्या लेके चलेंगे, नॉर्मल टू दी सरफेस. ठीक है, तो n यूनिट वेक्टर हम क्या ले लेंगे इसमें, अगेन i. n यूनिट वेक्टर इज i जो फिक्स है. ठीक है, दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस, राइट. तो इन सारों की वैल्यू मिल गई. तो ABEH f इसकी n की जगह पर आ जाएगा i. तो i की i के साथ मल्टीप्लाई होगी, सिर्फ माइनस y रह जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे. ds की जगह आ जाएगा dy dz बाय n डॉट i, और n कौन है, i है, i डॉट i 1, दैट मीन्स 1 हो गया. तो ये रह गया. ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या रह गया है, लिमिट चेक करनी. लिमिट हमें दे ही रखी है, y की और z की कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, 0 to 2 0 to 2 माइनस y dy dz. अब आप पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, तो आप किसी के भी विद रिस्पेक्ट टू कर सकते हैं. तो 0 to 2 पहले हमने किया y के विद रिस्पेक्ट टू, सो दिस विद y स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट 0 to 2 dz
ठीक है, लिमिट पुट कर दी 4, 2 पुट किया 4 आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, दैट इज -2, 0 to 2 -2 dz, एंड उसके बाद फिर से आप इसको इंटीग्रेट करोगे, -2z लिमिट 0 to 2 दैट इज -4, एंड वी हैव along ABEH is 4, along ABEH is 4, ठीक है। अब हम लेंगे इसके सामने वाला फेस, इसके सामने वाला फेस कौन सा बनेगा, OCFG। अब आप इसमें चेक करो कौन फिक्स है कौन वेरी कर रहा है, पहले एक्स देखते हैं OCFG में, जो इसके सामने वाला है 0 0 0 0, तो ये इसके सामने वाला तो OCFG पे चेक करा, x 0 0 0 एंड 0, दैट मीन्स x फिक्स है इसमें भी, लेकिन ये इसका ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट यानी कि ऑपोजिट आएगा, यानी जैसे यहाँ पर x फिक्स था तो हमने n क्या ले लिया था i, इसमें भी x फिक्स है, लेकिन अब ये इसका ऑपोजिट है, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, हम n लेंगे i, बट कैसा लेंगे, -i ले लेंगे, क्लियर। और वेरी कौन कर रहे हैं, y 0 2 2 0 वेरी कर रहा है, ऐसे ही z 0 0 2 2, ऐसे ही z भी वेरी कर रहा है। तो अब हम चलते हैं OCFG, आई थिंक सारा मटेरियल मिल गया, तो OCFG के अलॉन्ग में कैसे करना है, OCFG में हम n यूनिट वेक्टर क्या ले लेंगे, -i ले लेंगे, और ds क्या ले लेंगे, अगेन yz प्लेन ही रहेगा, dy dz बाय n यूनिट वेक्टर डॉट i, ओके। सो f कर्ल f डॉट n चाहिए हमें, कर्ल f डॉट n क्या बन जाएगा, कर्ल f था हमारा डॉट n, अगेन वही i की i के साथ प्रोडक्ट होगी, तो ये आ जाएगा, वहां पे -y आया था तो यहाँ आ जाएगा y आ जाएगा, राइट। तो कर्ल f डॉट n भी आ गया। अब सीधा हम फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, तो लिमिट किसकी लगाएंगे, y की और z की, ये आ जाएगा y, और n डॉट i क्या बनेगा, n इज -i इंटू i 1 हो गया, मोड था +1 हो -1 हो 1 ही आना था, तो दिस इज dy dz, राइट। तो अब आप इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज आई थिंक दिस वुड बी 4, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट फेस पे, तो अब नेक्स्ट फेस इज ये वाला ले लेते हैं, AOGH, ठीक है। AOGH में क्या है, x तो वेरी कर रहा है 2 0 0 2, राइट, तो x वेरी कर रहा है, y चेक कर लेते हैं 0 0 0 0, ठीक है। तो 0 वाले में नेगेटिव लेते हैं, तो मेन फेस इज दिस, तो मेन फेस पे चलते हैं, पहले हम BCFE पे चलते हैं, ठीक है। मेन फेस ये है, 0 वाला उसका ऑपोजिट है, तो मेन फेस है BCFE, BCFE में x 2 0 0 2 वेरी कर रहा है, y 2 2 2 2, y इज फिक्स, तो अब n यूनिट वेक्टर क्या ले लेंगे हम, j, राइट, एंड z वेरी कर रहा है, z वेरी कर रहा है, तो अब प्लेन क्या होगा, x z प्लेन होगा, और n यूनिट वेक्टर क्या ले लेंगे हम, j, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वी आर टेकिंग BCEFE, ठीक है। तो नेक्स्ट ये प्लेन है, तो इसमें n यूनिट वेक्टर क्या ले लिया, j, और ds क्या ले लिया, dx dz बाय n यूनिट वेक्टर डॉट j, ओके। लिमिट वाइज 0 to 2 0 to 2, तो कर्ल f डॉट n वेक्टर क्या आ जाएगा, कर्ल f डॉट n, n क्या है, j है, तो सिर्फ j के साथ प्रोडक्ट होगी, तो कर्ल f डॉट n आ जाएगा j वाला, यानी कि z वाला, ठीक है, z आ जाएगा, कर्ल f डॉट n z रह जाएगा, ओके। तो अब हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो 0 to 2 लिमिट x की और z की, ठीक है, सबकी लिमिट 0 to 2 दे ही रखी है, तो z dx dz बाय n डॉट j 1 बन जाएगा, तो ये रह जाएगा, इसको आप इंटीग्रेट करोगे एंड वी हैव ओनली 4,
राइट। तो दिस इज बी सी ई एफ या एफ ई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज पे। अब इसके सामने वाले फेज पे चलते हैं जिसमें हम एन क्या ले लेंगे, जो भी मैं जिसकी बात कर रही थी ए ओ जी एच वाले में, ठीक है। इसमें y 0 है, दैट मीन्स, और ये वैसे भी इसके सामने वाला फेज है, तो इसमें एन यूनिट वेक्टर क्या ले लेंगे हम, माइनस जे ले लेंगे, बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो अब हम नेक्स्ट जो फेज ले रहे हैं दैट इज ए ओ जी एच, ए ओ जी एच, ये फेज ले रहे हैं। इसमें एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा माइनस जे, उसके बाद डी एस वही रहेगा, डी एक्स डी जेड बाय एन डॉट जे, ओके। तो एफ कर्ल एफ डॉट एन निकालना है, कर्ल एफ डॉट एन वही आ जाएगा, बस माइनस साइन आ जाएगा साथ में, माइनस जेड। उसके बाद आप इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा डबल इंटीग्रेशन 0 to 2 माइनस जेड डी एक्स डी जेड, तो आंसर आ जाएगा 4 अगेन, राइट। तो अब चलते हैं हम ऊपर वाले फेज पे। ऊपर वाला फेस यानी कि एच ई एफ जी, ठीक है। इसमें चेक कर लेते हैं कौन फिक्स है, x2 2 0 0 वेरी कर रहा है, y0 2 2 0 y भी वेरी कर रहा है, एंड z इज 2 2 2 2, z यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कि लेकिन 2 वाला कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स हम n क्या लेंगे, k यूनिट वेक्टर ले लेंगे, ठीक है। और प्लेन कौन सा ले लेंगे, x y प्लेन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा इसमें, तो अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट फेस ले रहे हैं एच ई एफ जी। इसमें एन यूनिट वेक्टर हम क्या ले लेंगे, के, और डी एस क्या आ जाएगा, डी एक्स डी वाई बाय एन यूनिट वेक्टर डॉट के आ जाएगा। और कर्ल एफ क्या आ जाएगा, कर्ल एफ क्या आ जाएगा, सो कर्ल एफ इज के की के साथ प्रोडक्ट होगी, कर्ल एफ डॉट एन बन जाएगा -1 ओनली, ठीक है। तो अब इंटीग्रेट कर दो, तो 0 to 2 लिमिट x की, 0 to 2 लिमिट y की, ये आ जाएगा माइनस डी एक्स डी वाई, ये सेम पहले की तरह ही 1 बन जाएगा, तो आंसर आ गया -4। जब आप इन पांचों फेसेस को ऐड करोगे दैट मीन्स हम क्या करने वाले हैं, विद रिस्पेक्ट टू एस कर्ल एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर जब निकालेंगे डी एस, तो दिस वुड बी -4। आई थिंक एफ डॉट डी आर भी -4 आ रहा था, और कर्ल एफ डॉट एन यानी कि सरफेस इंटीग्रल भी -4 आ रहा है, हेंस द स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ओके। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके लिए स्टोक्स थ्योरम को आपको वेरीफाई करना है। ये आप करके देखना, ट्राई करके देखना, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर आती भी है तो मैं हूँ, मेरे को आप प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं कि नहीं हुआ क्वेश्चन। तो एफ वेक्टर हमें दे रखा है 2xy माइनस एक्स स्क्वायर आई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे। स्टोक्स थ्योरम आपको वेरीफाई करनी है इसके लिए। एंड सी इज द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x एंड x इक्वल्स टू y स्क्वायर। मैं आपको बता देती हूँ, दो पैराबोलाज हैं, एक तो ये अपवर्ड पैराबोला है जो कि क्या है, मैंने दोनों सेम लिख दिए, x स्क्वायर इक्वल्स टू y, ठीक है। तो एक तो है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, ये वाला होगा, और एक है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो जो रीजन बाउंडेड बाय दीज टू पैराबोलाज है उसके अलोंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। एफ डॉट डी आर के लिए पहले आप विद रिस्पेक्ट टू ये कर्व चलोगे, ओ ए नाम दे दो, तो पहले चलोगे ओ ए के अलोंग, ओ ए इज वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप सारे फंक्शन को x में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिमिट क्या आ जाएगी, ये कहाँ पर कट होंगे, ये 1 पर कट होंगे, यानी कि ये 1 पॉइंट है और दिस इज 0 0, तो लिमिट आ जाएगी 0 to 1, और उसके बाद अलोंग चलोगे आप ए ओ के, इसमें लिमिट आ जाएगी 1 to 0। आप सारे फंक्शन को x में कन्वर्ट कर सकते हो,
ठीक है। तो अलोंग ए ओ जब चलोगे तो आपको कौन सी लेके चलनी है, कर्व कौन सी लेके चलनी है, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से एफ डॉट डी आर निकल जाएगा, यानी कि लाइन इंटीग्रल निकल जाएगा। और उसके बाद हम चलेंगे स्टोक्स थ्योरम पे। तो कर्ल एफ आप निकाल लेना। कर्ल एफ के बाद बड़ा सिंपल है, डॉट एन लेना है हमें, ठीक है। एन यूनिट वेक्टर हम कौन सा ले लेंगे, जो आउटवर्ड, हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, जो जैसे हमने उसमें किया था आउटवर्ड जो बच गया, ये कौन सा प्लेन चल रहा है, एक्स वाई प्लेन, तो एन यूनिट वेक्टर हम ले लेंगे के, ठीक है। जो आउटवर्ड यूनिट वेक्टर है उसको ले लेंगे, क्योंकि हमें सरफेस नहीं दे रखा ना, तो सरफेस होता तो हम उसके लिए यूनिट वेक्टर निकाल लेते, बट हमें सरफेस नहीं दे रखा। जब सरफेस नहीं मेंशन, ऐसे ही क्यूब वाले में था, हमें सरफेस मेंशन नहीं था, हमें उसकी कोई स्टेटमेंट दे नहीं रखी थी, बस इतना बोला हुआ था कि सरफेस इंटीग्रल निकालना है। अब जब सरफेस नहीं दे रखा तो हम आउटवर्ड बाहर वाला कोई यूनिट नॉर्मल वेक्टर लेंगे। तो वो क्या किस हिसाब से लेते हैं, जो प्लेन हम कंसीडर कर रहे हैं और जो बच गया उसका वाला, यानी कि अब ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, तो जो बच गया जेड वाला, तो उसके साथ का यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, के। तो अब हम एन यूनिट वेक्टर क्या ले लेंगे, के। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही हमने क्यूब में किया था, जो प्लेन है उसमें जो बच गया, जैसे अगर एक्स जेड प्लेन है तो बच गया कौन, वाई, तो वाई के साथ वाला यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, जे, तो एन यूनिट वेक्टर हम क्या ले लेंगे, जे। इसको हम आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, इसको इसलिए लिया जाता है, राइट, क्योंकि हमें सरफेस इंटीग्रल हम तभी निकाल सकते हैं जब सरफेस दे रखा होगा, सो दैट हम उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल सके। बट अब हमें कोई सरफेस यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम इस तरीके से आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो एन यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा, कर्ल एफ आप निकाल लोगे। उसके बाद रह गई लिमिट। लिमिट में ये हमारे पास दे रखा है, लिमिट में मैंने आपको बताया भी था पहले कि y की लिमिट हम लेंगे x की फॉर्म में और x की लिमिट लेंगे कांस्टेंट, एज दिस इज ये x है ना, x की फॉर्म में x की लिमिट आ जाएगी 0 to 1, और y की लिमिट क्या आ जाएगी, y वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, पहली कर्व कौन सी है, पहली कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू x, तो y वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, y आ जाएगा अंडर रूट एक्स, y आ जाएगा x स्क्वायर टू अंडर रूट x, ठीक है। y की लिमिट आ जाएगी x स्क्वायर टू अंडर रूट x, और x की लिमिट आ जाएगी 0 to 1। कर्ल एफ आपको मिल गया, n यूनिट वेक्टर इज k यूनिट वेक्टर, सारों की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। ds कौन सा प्लेन चल रहा है, ये एक्स वाई प्लेन चल रहा है, तो ds आ जाएगा dx dy बाय n यूनिट वेक्टर डॉट k, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई हैं, इन सारी वैल्यूज को आप पुट करना और आपको लाइन इंटीग्रल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक यहाँ तक आपको करना है, स्टोक्स थ्योरम तक आपका कंप्लीट हो जाएगा ये यूनिट, ठीक है। सो उसके बाद हम थर्ड सेशनल लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी कहाँ तक करना है, राइट। तो इसको बहुत ध्यान से करना, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं कर रहे हैं, हम इतना ही कर रहे हैं, इसके बाद वाला आगे वाला टॉपिक नहीं कर रहे हैं, तो इतना ही बहुत है। आई थिंक एक ही टॉपिक रह जाएगा, दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सो दैट इज इनफ फॉर योर सिलेबस। तो ओके, सो या दैट्स इट।